right? This we did. So what is this rule of proportion? Product of means is equal to product of extremities. That we call like cross multiplication also. Why we call it cross multiplication? I'll tell you. See, A ratio B का other form क्या है? We can write it A upon B, है ना? And ये फोर डॉट्स को और कैसा लिख सकते? इज इक्वल टू, फोर डॉट्स आर इज इक्वल टू, बोथ आर सेम. एंड सी रेशियो डी को सी अपॉन डी लिख सकते. व्हेन यू हैव टू फ्रैक्शंस लाइक दिस, सिंपली द मैथमेटिकल ऑपरेशन सेज दैट ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट. देन a times d is equal to b times c. That's why we call it cross multiply also. Then इसमें से क्या समझ में आ रहा है? Product of extremities is equal to product of means. Whatever the proportion, it is a four numbered proportion or three numbered proportion, every proportion has to follow this rule. ये जरूरी है, otherwise it is not called proportion. Got it? Then we were talking about, is it possible to write proportion by using three numbers? Yes, we can write. Okay. Then how ये proportion कैसा फॉर्म होगा three numbers से? If I have three numbers A, B, C, and all the three numbers are different numbers, that's why I call three numbered proportion. Then here what happens? The middle two numbers will be same. Okay, the middle two numbers will be same. The three numbered proportion we write like this: A ratio B proportional to B ratio C. Okay, then in this, what all the three numbers we call? The first number is called first proportion, but यहाँ एक important चीज you should remember, the middle two numbers same B है ना, ये B को second proportion बोलते हैं और it has one particular name, mean proportion. ये word mean proportion use होता है only in three numbered proportion. So whenever you see the word particular mean proportion, you should understand that particular term belongs to three numbered proportion. खाली three numbered proportion में मिलता है mean proportion. And the last one is, that is a third proportion as usual. Whether it is a four numbered proportion or three numbered proportion, it should follow the rule of proportion. ये रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज. देन मीन्स क्या है? बी एंड बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर मस्ट इक्वल टू ए इंटू सी, ए स्क्वायर. So every proportion should follow this rule. So we can make three numbered proportion also. Do you want me give one example for three numbered proportion? Anybody want it? Yes. Anybody wanted example for three numbered proportion? Say yes, no, at least. Do you want to know, Sneha? Yes, I'll write here. 4 ratio 9. Oh, wait. Let me change it. I write 4 ratio 6 proportional to 6 ratio 9. First of all, tell me how many numbers are there in the proportion? 3 are there, no? 4, 6, 9. All the three are different. A not equal to B not equal to C. The middle one is repeated. Okay. Then let us see whether ये proportion होता है या नहीं. Proportion होने के लिए क्या है? It should follow rule of proportion. 6 times 6 is 36 and 4 times 9 also 36. Or else you can check like this. 4 ratio 6 को simplify करो. क्या मिलेगा हमें? 2 times 2 3 times 2.3 मिला. अभी इसको भी simplify करो. 6 रेशियो 9 को कैसे लिखते हैं? 6 अपन 9. अभी सिंप्लीफाई करो. 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, सेम मिला ना, 2/3. सो दोनों का वैल्यू सेम ही है, 2/3. दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर रेशियो proportion. I hope this is clear with all, right? So now we understood about all the concepts of ratios and proportions. Now let us jump into the questions. Okay. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसा यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में देखेंगे. Here we go with the first question. Yes, there is a question for you and you have 1 minute time. First you try to solve it, post your answer. कैसे को भी हम डिस्कस करेंगे.
आपका आंसर्स मिलने के बाद एवरीबडी शुड ट्राई. यू कैन डिस्कस एंड सॉल्व इट, नॉट ए प्रॉब्लम. टू हेड्स आर मच बेटर देन वन हेड. देन डिस्कस करके सॉल्व कर दो एंड पोस्ट योर आंसर. If you don't get any idea, just let me know. We'll do together since it is the first question. Your time up, guys. 1 minute हो गया. Shall we do it? चंदन, करेंगे? रोशन, स्नेहा, shall we? Okay, chalo then. Everybody, attention here. Since it is the first question, I am going to give so many concepts through this question. So don't miss any concept. आंसर को गोली मारो कैसे भी मिलता है, मगर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई प्लीज बी फोकस्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन. ठीक है. सो हियर इन द आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन टू डिफरेंट मेथड्स. एक ओनली रेशियोस यूज करके सॉल्व करेंगे एंड और एक मेथड में प्रोपोर्शंस यूज करके सॉल्व करेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिफर टू ईच अदर. एप्लीकेशन कैसा कर सकते हैं ये पता चल जाएगा अगर ध्यान से सुने तो. पहले मैं रेशियो यूज करने जा रहा हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है. हियर टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. फाइनली वी नीड टू फाइंड द स्मॉलर नंबर. का मतलब क्या है, देर आर टू नंबर्स. वो टू नंबर्स ये रेशियो के साथ है. देन 3 के लिए एक नंबर होगा और 5 के लिए और एक नंबर होगा. देन हमें फाइंड आउट करना है 3 का नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. देन first we need to understand what will be the nature of here smaller number means we need to find the number corresponding to 3 smaller number का मतलब. Then, if any number exists per 3 ratio, then what should be nature of this number? ये नंबर का नेचर क्या होना चाहिए? एनीबडी, कैसा होना चाहिए नंबर? अगर 3 का एक नंबर होना है हमें, कैसा होना चाहिए वो नंबर? एनीबडी? ओके, आई टेल यू दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3. का मतलब ये 3 का जो नंबर है दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3. 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना है. देन ओनली दैट विल बी आवर आंसर. Then we do option verification. For example, if I take option A and that must be corresponding to 3. ये होगा या नहीं होगा 27 corresponding to 3? Yes, no, बता दो. Is 27 divisible by 3? Exactly. Be fast and be responsive. Quick, I wanted a quick response from you. अरे कोई तो बता दो यार. 27 is Yes, sir. exactly. Yes, okay. Then this may be my answer on clarity. Yes, sir. Okay. And 49. Is 49 divisible by 3?
No. No, So, sir. no, definitely wrong answer. And what about 36? Yes, right? This could be my Yes. answer. And 33, yes, this may be my answer. Then, just by checking nature of the number, we could eliminate one option is wrong. Then further देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ. Then next in continuation, if 9 is subtracted from each, just we are talking about only this number, okay? But anyways, 9 should be subtracted from this number and from this number also. So if 9 is subtracted, then क्या होना है? New ratio should become 12 ratio 23. If I consider the first option is my correct answer, then इसके लिए क्या होना चाहिए? After subtracting 9, इसमें से अगर 9 subtract करे तो then क्या मिलता है? Subtracting 9, 27 minus 9. Anybody help me? 18, I think, right? 18. Then this number should connect with the 12. Then is 18 divisible by 12? Is 18 multiple of 12? No. So option A cannot be an answer. If I take 36, I subtract 9, then I'll get, anybody, 27, huh? Okay, 27. Is 27 multiple of 12? No. So this is a wrong answer. Then ho gaya, definitely this must be my answer. But even still you want confirmation. If I do minus 9, I'm getting 24. Then 24 is multiple of 12. That's why option D is the correct answer for this question. Anybody didn't get this? If not, please tell me. I'll explain again. Is that clear to all? Yes? Okay. If you don't respond, I consider everybody understood. सर थोड़ा थोड़ा है. थोड़ा थोड़ा समझ में आया. और एक बार बताऊं मैं. Yes, sir. Yes. Okay. So we are using only ratio concept. I'll go little bit fast. Be active. Here two numbers are there in the ratio 3:5. I have to find smaller number का मतलब 3 का connected number find out करना है. Then मुझे पता है 3 का number कैसा होगा. Definitely it should be multiple of 3. Then if I go with option verification, whatever the option is multiple of 3, that should be my answer. If I take 27, it is a multiple of 3, then this may be my answer. If I take 49, 49 is not multiple of 3, definitely this is a wrong answer. If I take 36, multiple of 3, this also can be my answer. Even 33 also multiple of 3, this can be my answer. Then through this concept, I could eliminate one option which is wrong, or B galat hai. Then, in continuation, if 9 is subtracted from each, for example, if I take 27 is my correct answer, then I should subtract 9 from it. Then I'm getting 18 here. Then after subtraction, the new number should connect with the 12. सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया रेशियो ये है. देन नया नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 12 से मैच होना है. बट 18 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12. देन 27 इज गलत है. देन इफ आई टेक 36 माइनस 9 करे तो मुझे क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है. बट 27 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12, ये गलत है. देन एक ही बचा हुआ है, दैट इज माई आंसर. बट फर्दर कंफर्मेशन, इफ आई सब्ट्रैक्ट 9, दैट इज 24 is multiple of 12. Therefore, absolutely option B is the correct answer. Is that clear? Yes, sir. आगे. Okay. Then we solve the same question by using proportion. ठीक है. अब ये तो समझ में आ जाता. Why? Because it is a little bit involved math. ठीक है. So math से करते हैं. Two numbers are in the ratio 3:5. Then एक नंबर लेते 3x और एक नंबर क्या होगा 5x. राइट. द टू नंबर्स 3x एंड 5x ले रहे हैं. देन आफ्टर दैट क्या करना चाहिए हमें? इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ये दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है हमें. सो 3x में से 9 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. 3x माइनस 9, एक नया नंबर मिल गया. एंड 5x में से भी 9 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे. देन 5x माइनस 9 और एक नंबर मिल गया है मुझे. ये दोनों ही न्यू नंबर्स है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद. बट यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में? द न्यू नंबर्स विल इन 12:23. का मतलब ये दोनों न्यू नंबर्स का रेशियो बराबर 12:23. आ रहा है ना समझ में? ओके, दैट इज गिवन विद इन द क्वेश्चन. देन अभी तो ये प्रोपोर्शन बन गया.
देन whenever a proportion is there, वो तो 100% रूल ऑफ प्रोपोर्शन फॉलो करना चाहिए। हमें ये प्रोपोर्शन मिल गया, दिस शुड फॉलो रूल ऑफ प्रोपोर्शन। रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या बता रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। का मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग रूल ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज 12 टाइम्स 5x minus 9 must equal to 23 times 3x minus 9। Now we got one small simple algebraic equation। अगर इसको सॉल्व करें देन x वैल्यू मिल जाएगा ना। देन एवरीबडी सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट इज द x वैल्यू। यू हैव 15 सेकंड्स टाइम गाइस। सॉल्व करके बता दो x वैल्यू क्या है। I hope you are solving very good. Yeah, very good Anshul. Perfect. So x value 11. Then if I substitute x value 11 in both the numbers, I'll get small number and big number. दोनों मिल जाएगा मुझे, right? Then if I put x equal to 11 here, it is a 3 times 11, 33, एक नंबर मिल गया मुझे। And if I put here x value 11, that is a 5 times 11, 55. Then I got two numbers with me. Here in my question, I require, so 33 is related to 3, 55 related to 5. Finally, to find the smaller number. ये दोनों में smaller number क्या है? 33 है. Then option D is my right answer. Is that clear? Anybody still doubt? Ask me, I'll explain. Every time I'm telling you, please ask me if any doubt. I'm encouraging you to ask them doubts more and more. Is that clear with all? Very good. Chalo, then let us try one more question. Then here we used both the concepts, ratio and proportion. This is a very damaging question. You have time 15 seconds to solve it. Options are not given. I wanted you post your answer, but don't simplify it. Your answer, it can be in fraction or it can be approximate. If you want post your answer in decimal, don't do it until decimal. 7 से थोड़ा ज्यादा है, 7 प्लस पोस्ट कर दो। अगर फ्रैक्शन है सम 53/7, वैसे ही पोस्ट कर दो 53/7, but don't simplify it. My intention is not the exact number. My intention is to understand how do you understood this question. Your time up, guys. चलो then let me explain. यहाँ हमें सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ये सेकंड प्रोपोर्शन क्या है? कहीं भी देखा है या सुना है सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में? हैव यू एवर हर्ड और सीन द सेकंड प्रोपोर्शन? एनीबडी? यस नो तो बता दो। नो सर। नो? ओके ठीक है। अभी तक कहीं भी नहीं देखे क्या सेकंड प्रोपोर्शन ये वाला वर्ड? सर
हाँ आपने जो कल बताया था उसमें जो दो प्रमोशन, तो सेकंड वाला कहीं सेकंड प्रमोशन ऐसा तो। हाँ, तो देखा है ना, सुना है ना। यस सर, देखा है देखा है देखा ओके। है। अभी तो देखा। हाँ सुना है सर, सुना है सर। सुना है, देखा भी है ना। सर अभी भी दिखाया था। यस सर। हाँ, सो इन टू केसेस वी हैव दिस वर्ड। एक 4 नंबर प्रपोर्शन में है और 3 नंबर प्रपोर्शन में भी है, सेकंड प्रपोर्शन का, है ना। और एक बात दिखाऊंगा आपको क्लैरिटी के लिए। देन इन टू डिफरेंट केसेस वी हैव सीन दिस। ये देखो यहाँ, ये 3 नंबर का प्रपोर्शन है, इसमें इसको बोलते सेकंड प्रपोर्शन, है ना। दिस कॉल्ड सेकंड प्रपोर्शन, ये नंबर को। और 4 नंबर प्रपोर्शन में भी है सेकंड प्रपोर्शन। और एक बार देखते हैं उसको। ओके, ये देखिए, ये 4 नंबर प्रपोर्शन, इसमें भी है सेकंड प्रपोर्शन, है ना। ये सेकंड नंबर को बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, right? So, second proportion, the word is available in two cases. That's available in 4 number proportion, also available in 3 number proportion. But in this question, we need to decide ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है या 4 नंबर का है। बता सकते हैं आप लोग? ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है या 4 नंबर का है? 4 नंबर का बीच में दो सेम रहेंगे, बीच जो है। फोर, 20 का 2 नंबर सेम है तो इसको 3 नंबर प्रोपोर्शन बोलते। ठीक है अगर यस सर, चार थ्री नंबर नंबर अलग का। अलग है तो 4 नंबर बोलते। सुपर अंकित, सर। ऑलरेडी यू गॉट इट। सो देखेंगे 3 नंबर का है 4 नंबर का है। वी हैव टू फाइंड दिस नंबर। एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है और 2 नंबर्स अवेलेबल है। एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, 2 नंबर्स अवेलेबल है। तो पूरा कितने नंबर्स है इसमें? 3 नंबर्स है। That's why we call this a 3 numbered proportion. Then immediately 3 numbered proportion का फॉर्मेट क्या है वो माइंड में आना चाहिए, ठीक है। वो 3 नंबर का proportion का फॉर्मेट क्या है? A/B proportional to, अरे कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू क्या लिखूं मैं 3 नंबर का? B/C। वेरी गुड, B/C, ये 3 नंबर का प्रोपोर्शन। हमें फाइंड आउट करना है सेकंड प्रोपोर्शन का, मतलब बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी एज इट इज लिख दीजिए, कुछ भी मत करो। क्यों बोले तो बाद में बी का वैल्यू हमें पता करना है। देन बाकी 2 नंबर्स यही सीक्वेंस में लेना है। ये पहला वाला दिए सो नंबर ए है, ये नंबर सी है। सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की जगह 16 लिख दो एंड सी की जगह क्या लिखना है? हमें 12 लिखना है। Here we got a proportion. Anywhere, if you find the proportion, simply blindly apply rule of proportion. रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या बता रहे हैं हमें? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू, का मतलब बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज 16 इंटू 12। बट हियर वी नीड टू फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, का मतलब ओनली बी वैल्यू होना है हमें, नॉट बी स्क्वायर। देन बी वैल्यू क्या होगा? अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटा दिए तो ये होगा स्क्वायर रूट 12 into 16. Actually, I asked to say this value. I don't want simplified number. Square root of 12 into 16 बस है मेरे लिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट तो कैसा लिखते हैं? ये 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे हम, राइट। इंटू 16 एज इट इज लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वाई आई रूट लाइक दिस। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, then root 3 as it is, then that is 8 root 3 is my answer. But I don't want this, just I wanted only this from you. Already Ankit posted, that's really nice. Is that clear, guys? यस सर। Okay, चलो then और एक क्वेश्चन देखते हैं। Now you have again 15 seconds to solve this question. Everybody try and post your answer. 15 सेकंड में आंसर होना चाहिए मुझे।
क्या हो गया? Don't simplify it. You can post in fraction form, any unsimplified form. Okay, very good, Sandeep. Super. I wanted a response from everybody. संदीप बता दो, मैं लिखूंगा. अनम्यूट एंड टॉक. कैसा करेंगे? यस सर. या टेल मी. 8:7. हाँ, 8:7. देन वो डबल रेशियो को क्या बोलते हैं सर? क्या तो भी बोलो. डबल रेशियो. यस ले तू, मैं एंड संदीप. हाँ यस. थर्ड प्रपोर्शन कुछ भी मतलब एक से वगैरह हाँ, कुछ यस भी ले ले रू लो. मैं. ये संदीप का वैल्यू है ना, उसे ले यस ले रू मैं. यस सर. ओके. हाँ. प्रपोर्शन यस का 10. माने संदीप. 10. ओके. यस सर. 7 और एस हो जाएगा सर इंटू. हाँ, 7 यस. और 8 संदीप को 8 7 से इंटू 10 मल्टीप्लाई करो 80. तो 7 संदीप हो गया. एंड यस सर. 8 टाइम्स 10 80 हो गया. देन यस. संदीप का वैल्यू मिल गया 80/7. 80. है ना? यस. हाउ सिंपल द यस. क्वेश्चन इज. Very good. Roshan also posted the answer. Ankit, awesome. Roshan, rocking. Okay, Sandeep, super. Good. Then let us try one more question for more clarity. This time I wanted exactly in 10 seconds your answer. Do everybody. ये मेन प्रपोर्शन कहाँ मिलेगा हमें? किसमें मिलता है मेन प्रपोर्शन? सर सेकंड प्रपोर्शन में. हाँ, बट दो टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन है ना, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला. किसमें मिलेगा मेन तीन प्रपोर्शन? नंबर 3 नंबर. 3 नंबर 3 वाला. नंबर. ठीक है. ठीक है. सर 6:2. रेशो नहीं, यहाँ तो रेशो नहीं पूछ रहा है, खाली मेन प्रपोर्शन पूछ 6 रहा है. under root 2. 6 under root. ओके. अंदर. ओके. वेरी गुड. देन बता दो ना, क्या लिखूं मैं यहाँ? 3 नंबर वाला कैसा होगा? ए रे. 12 ratio B. हाँ, प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी. इसमें मेन प्रपोर्शन क्या होगा? बी है ना? सर बी. हाँ, बी. देन बी को ऐसे ही लिखते. देन बाकी दो नंबर्स, एक होगा ए सर और एक होगा सी. सी. देन 12 रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो 6. अभी अप्लाई रूल ऑफ प्रोपोर्शन. B² बी स्क्वायर 12 into 6. 6. बट हमें चाहिए बी वैल्यू. √12 12 into 6. बट स्टिल इफ यू वांट टू डू नॉट रिक्वायर्ड. बट अगर करना है उसको कैसा लिखते हैं? 12 को 4 into 3 लिख दो. एंड 6 को कैसा लिखेंगे हम? 3 into 2. देन 4 का स्क्वायर रूट है 2. और 10 into 3 का स्क्वायर रूट है 3 इंटू √2 एज इट इज. देन हो गया 6 √2 इज द राइट आंसर. गुड. आई होप एवरीबडी गॉट इट, है ना? ओके. यस सर. या. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी. यू हैव 30 seconds टाइम.
Is anybody got it? Very good, Sandeep. Wonderful. संदीप एक्सप्लेन कर दो, मैं लिखूंगा. I'll write on behalf of you. Tell me. या संदीप? सर हाँ. सर ए सी और ई की वैल्यू 1 है सर. हाँ, ए वैल्यू, सी वैल्यू सी एंड ई वैल्यू ई 1 है. और यस सर. और हम्म बी डी और एफ की डी, वैल्यू 2 है सर. डी एंड एफ का 2 डी है. सब्स्टिट्यूट डी कर दो यहाँ. हाँ सर. ओके. ए वैल्यू, सी वैल्यू, ई वैल्यू 1 है. तो मुझे यस सर. मिलेगा पी प्लस क्यू पी प्लस प्लस आर. क्यू प्लस आर. वेरी नाइस. रेशियो. और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं ए हाँ सर. बी पी डी प्लस एफ क्यू का. तो क्या मिलेगा मुझे? 2p प्लस 2q प्लस प्लस 2r. क्यू एफ. हाँ, उसके बाद सर 2 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है. तो पहला वाला ब्रैकेट ऐसे लिखूं मैं, और सेकंड ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया मैंने. p प्लस क्यू प्लस आर. हाँ, उसके बाद सर इधर इधर अपन ये फर्स्ट वाले में 1 को तो हाँ, मान लेंगे सर कि 1 ये कॉमन दोनों है. लड़के मर गया है ना. यस सर. हाँ तो यहाँ 1 बच गया, कुछ भी नहीं है तो. सर. देन इस 1 तरफ रेशो 2 दो. है. 1:2. परफेक्ट. यस वेरी सर. नाइस. थैंक यू, थैंक सर यू. मैंने अलग टाइप से करा है. हाँ, बताइए प्लीज. सर मैंने ये एफ के बाद जी एच आई जे सबको 1:1 मान लिया है. ओके. हाँ, तो मेरा भी 1/2 ही आ रहा है आंसर. परफेक्ट. सही है. इवन अंशुल पाई रेशो 10 लिखा है, वो भी सही है. पाई/10. ये भी 1:2 होगा ना. परफेक्ट. वेरी गुड. द अप्रोच में बी डिफरेंट बट यू डिड ग्रेट जॉब. वेरी नाइस. हाँ, चलो. टेम्प्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को देख के. आज सैटरडे भी नहीं है. और यहाँ ये भी है, देखना. ओके. डोंट टेम्प्ट. ओके. आई एम वेटिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सेस. 4 का मतलब अंकित, यू मीन टू से ऑप्शन डी? ओके. So 2 people posted same answer. I'm waiting for more responses. Okay.
3 people posted the same answer. ओके चलो, एनीबडी वांटेड एक्सप्लेनेशन पोस्ट EXP और इस बोल दो करेंगे। चंदन, हेमंत करेंगे क्या? रोशन, लोकेश, वर्षा, वरुण, अरे कुछ तो बोलो यार, करेंगे। ओके या चंदन श्योर। सर एक्सप्लेन की कंफर्म नहीं है कि 12 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो सर, फिर कंफर्म करेंगे। ही मुझे तो। हाँ फिर करेंगे। ओके। सर अंकित तो कंफर्म है। हाँ ओके। तो एक्चुअली क्या करना है, व्हाट इज द रियल एक्टिविटी वी डू एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या करना है क्वेश्चन में हमें? करना क्या है? देर इज सम कंटेनर और ग्लास, उसमें मिक्सचर है। ओके, 4:4 रेशो 1 में अल्कोहल एंड वाटर है। अभी हम हमें करना क्या है प्रैक्टिकली? सर 4:1 के रेशो को 3:2 पे लाना। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वाटर को ऐड करना है सर। ऐड करना है। तो वाटर कैसा ऐड कर रहे हैं? ग्लास लेके ग्लास से पानी डाल रहे हैं या कुछ है यहाँ अवेलेबल वाटर ऐड करने के लिए? कैसा ऐड चम्मच। करने जा रहे हैं? हाँ वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू, गुड। हाँ यू आर सर राइट। स्पून है। हाँ स्पून है, स्पून से वो आइस क्यूब लेके डालना है ग्लास के अंदर, है ना? यस। अभी स्पून कौन सा आइस क्यूब के पीछे है? कौन सा आइस क्यूब 20। करते हैं आप? 20 का, सो 20 है अपना आंसर, ऑप्शन ए। आए ना बात समझ में? यस सर। हाँ। तो फिर मैथमेटिकली कंफर्म करते, ठीक है, होता या नहीं होता, राइट? ओके सो हियर 60 लीटर मिक्सचर है, इसमें 4:1 में अल्कोहल है और वाटर है। देन कैन यू डिवाइड 60 लीटर इन द रेशियो 4:1? अल्कोहल कितना होगा, वाटर कितना होगा? सर 12 लीटर का एवरेज आ रहा है। 12 लीटर वाटर है। यस सर। हाँ बाकी, बाकी कितना है 12 लीटर गए तो? 12x4 48। अल्कोहल है। 48, ओके। 48। 48 अल्कोहल है। अभी इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? वाटर ऐड करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा वाटर को। प्लस एक्स। हाँ प्लस एक से आप क्या तो भी। देन अभी ये अल्कोहल सेम 48 ही होगा या उस वो भी चेंज होगा? अल्कोहल 48 ही रहेगा वो। 48 ही होगा ना, इसमें तो चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर यहाँ तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, है ना, वाटर का। ये वाटर ऐड करने के बाद ये नया मिक्सचर मिल गया हमें, दिस अ न्यू मिक्सचर। इन द न्यू मिक्सचर अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए नया मिक्सचर में, है ना? ये 3:2 इज अ नया मिक्सचर के लिए है। का मतलब ये नया मिक्सचर में 3 यूनिट्स का वैल्यू 48 है। देन 2 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा? 3 रिप्रेजेंटेड इन 24। 24, वेरी गुड। सो 24 होना चाहिए। कैसा, एक बार बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। यस। सर वन हाँ क्वांटिटी ऑफ वाटर की है 12। हाँ, सेक 2 का इंटू 2 कर दिया। कैसा? नहीं नहीं, ये ये 3 and 48 का रिलेशन क्या है? वही सर रिलेशन यहाँ भी 32 होना आएगा ना। चाहिए ना। यस सर। कंपैरिजन कैसा करते? दो नंबर से 3:2 में 3 का वैल्यू है 48, 2 का वैल्यू कैसा निकालते? 3:2 है मेरे पास, ये 3 का वैल्यू 48 है, देन 2 का वैल्यू क्या होगा? कैसा कैलकुलेट करते ये वैल्यू को? 32 होगा, 48 डिवाइड बाई 3। हाँ 48 डिवाइड बाई 3 क्या होगा फिर? 32। 16, है ना? देन यहाँ भी 16 से करना पड़ेगा ना, यस सर। देन 32 मिलना चाहिए नहीं। सो यस ये सर। नंबर 32 है। सो अब इसमें से क्या समझ में आ रहा है? बिफोर एडिंग वाटर 12 लीटर था पहला,
ऐड करने के बाद 32 हो गया, देन कितना लीटर ऐड कर दिए हम? सर 20। 20 ऐड करें तो 32 हो जाएगा। देन 20 इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। यस। अगर ये गड़बड़ है तो और एक मेथड में बताऊंगा सेम क्वेश्चन को फॉर मोर क्लैरिटी, डोंट वरी। सो पहले तो ये समझ में आ गया, 60 लीटर में अल्कोहल है 48 लीटर, एंड वाटर है 12 लीटर। ये रेशियो क्या है? 4:1। अभी हमें न्यू रेशियो बनाने के लिए अल्कोहल 48 ऐसे ही है, चेंज नहीं है इसमें, बट वाटर को कुछ ऐड कर रहे हैं हम। देन न्यू वाटर क्वांटिटी होगा 12 + 6 लीटर ऐड कर रहे हैं हमें। ये दोनों नया नंबर्स कौन सा रेशियो में होना चाहिए? हमें 3:2 में होना है। आ रहा है ना बात समझ में? अभी तो एक प्रपोर्शन बन गया। देन प्रपोर्शन का मतलब इट शुड फॉलो रूल ऑफ प्रपोर्शन। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। दैट इज 3 × 12 + 6 मस्ट इक्वल टू 2 × 48। इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स वैल्यू मिलेगा ये 3 16 टाइम्स, है ना? देन दैट इज 2 × 16 32, 12 + x इक्वल टू 32। देन x होगा 32 -12, तो 20 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। फाइनल रेशियो टू गेट 3:2। इज दैट क्लियर? Is anybody still in confusion? यस सर। यस सर। Okay. Now let us try one more question. Huh. This is more frequently asked question. Recently, February and March, वो TCS का सीजन था। I don't know whether you wrote the exams or not, TCS का अटेंड करे या नहीं। सेम क्वेश्चन दिया है उसमें, बट द नंबर्स आर डिफरेंट। इवन आई विल शो द क्वेश्चन पेपर आल्सो, TCS का एक क्वेश्चन आया है सेम, एग्जैक्टली सेम। Yes, got any idea? क्या करेंगे? Okay, चलो then let us do.
ओके, सो ये क्वेश्चन क्या है, इफ वी वांट टू डू मैनुअली इट इज टाइम टेकिंग, ट्रस्ट में इट टेक्स मिनिमम 10 to 15 minutes अगर मैथमेटिकल अप्रोच से करे तो। बेटर यू रिमेंबर वन फॉर्मूला, आई गिव यू वन फॉर्मूला। और फॉर्मूला किसके लिए है, एनी क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है तो फॉर्मूला यूज कर दो। इसमें वो पर्टिकुलर वर्ड दिखाए जा रहे हैं ना, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस्ड विथ समथिंग, वॉट एवर, रिप्लेस्ड विथ समथिंग का मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो, देन यू विल गेट आंसर इन 3 to 4, सॉरी 20 to 30 seconds। पहले ही फॉर्मूला लिख दीजिए आप, फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, देन आई विल explain how to use this formula. Simply use this formula whenever the question about the replacement of something. Done. जल्दी लिखना है, हो गया। Yes, are you done? Copied? Yes, sir. Okay. Then I'll explain how to use the formula. To find the final concentration equal to initial percentage of the concentration, 1 minus replaced quantity by original quantity. Here, n represents how many times the process is done. In our question, the process is done for 2 times, है ना? ये क्वेश्चन में देखिए आप, this process repeated twice का मतलब n value 2 हो गया। Then finally, find the percent of milk left in the vessel, means final percent find out करना है हमें। Then to find out the final percentage, we should know the initial concentration in percentage. Then initial percentage calculate करेंगे हम पहला। There is total 200 liter, ओके, टोटल 200 लीटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर है, इन व्हाट रेशियो, 4:1। देन बोल सकते हैं मिल्क कितना है, इफ यू स्प्लिट 200 इन द रेशियो 4:1, 4 का वैल्यू क्या मिलेगा, एनीबॉडी हेल्प मी। यस, सर 160 रेशो 40। ओके, सो 160 मिल्क है, 160 लीटर, हमें होना है परसेंटेज का मतलब 200 में 160 है, परसेंट का मतलब 100 में क्या होगा, परसेंटेज का मतलब कैलकुलेशन फॉर 100 नो, 200 के लिए 160 है, देन 100 के लिए 80। क्या होगा 80, सो इनिशियल परसेंटेज इज 80, ओके। एंड देन हाउ मच क्वांटिटी रिप्लेसिंग एवरी टाइम, 40 20%। is replacing 40 liter removed and replaced with water, so 40 liter, okay, taking out and 40 liter adding, so replacement का वैल्यू 40 है, then total quantity क्या है 200 है, then these values we substitute in the formula, ठीक है। So to get the final concentration, initial concentration percentage क्या है हमारे पास 80 है ना, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 80 इंटू 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी क्या था 40 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था 200, हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस इज डन 2 टाइम्स, देन सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट द फाइनल कंसंट्रेशन, ये क्या होता है 45 टाइम्स, देन दैट इज 80, ये 5 minus 1 4/5 है ना, 4/5 होल स्क्वायर, देन 4/5 इंटू 4/5 होल स्क्वायर का मतलब, देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 5 16 times, and this is 16 into 16 256 upon 5, क्या मिलेगा हमें 5
5s are 25, 5 3s are 15, 5 2s are 10. ये करेक्ट है या गलत है? करेक्ट करा या नहीं? 5 5 नो नो, आई डिड समथिंग रॉन्ग. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10. 51.2 होना है. चेकिंग 51.2 है या नहीं? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर. इज इट क्लियर? यस. ओके. चलो देन हियर वी स्टॉप. वी डू मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन. तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को. एंड मोर ओवर ओनली फ्यू पीपल आर अटेंडिंग दिस सेशन. क्या होगा रीजन? बाकी पूरे सबको जॉब मिल गया है क्या? वाई द नंबर इज गोइंग डाउन एवरी डे? व्हाट इज द रीजन? ओके, no problem. Anyways, thank you so much. See you tomorrow. Bye for now.